अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झेल हैं। आसनसोल डिवीज़न के तहत देवघर बंका सेक्शन में महदूद ऊंचाई वाले सबवे की कामयाबी से तकमील। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ की तहकीकात का हुक्म दिया। 25 लाख रुपए मुआवजा। कर्ज की वसूली के लिए एसबीआई ने फैक्ट्री पर कब्जा किया। आसनसोल बीजेपी एमएलए और मगरबी बंगाल के रियासती सेक्रेटरी अग्निमित्रा पाल ने बढ़ते हुए जराइम और बिगड़ते हुए कानून को लेकर तृणमूल हुकूमत पर सख्त हमला किया और रियासत को हुक्म दिया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For pin code franchise courier contact please contact 977403। एक खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुरुलिया जिला पुलिस और महकमा आबकारी के अहलकारों ने पेट्रोल के सामने एक गैर कानूनी जाली शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। पुरुलिया जिला के नीतू यारिया ब्लॉक में सरवरी मोड़ के करीब पंप। न्यूज़ मूवमेंट के वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्टों के मुताबिक जिला पुलिस ने वहां छापा मारकर बरामद किया लाखों रुपए मालियत की बोतलें। इस मामले में 4 ख्वातीन, 5 मर्द और 1 नाबालिग को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस फैक्ट्री से तकरीबन 75,000 बोतलें जब्त की गईं। बुध को उन्हें रघुनाथपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से 5 लोगों को पुलिस की तहवील में ले लिया गया, जबकि नाबालिग को पुरुलिया आनंद मठ होम भेजा गया था। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद जमुरिया और बिहार। इस सिलसिले में बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अभिजीत बनर्जी ने कहा कि सोर्स इनफरमेशन पाई कि नितुरिया थाना सरबरी मोड़ेर पासे একটা পেট্রোল পাম্পের পাশে একটা ঘেরা জায়গা আছে। সেই জায়গাতে স্পুরিয়াস অ্যালকোহল এটা ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, প্যাকেজিং হচ্ছে এবং তার স্মাগলিং হচ্ছে। সেই খবরটাকে আমরা ওয়ার্কআউট করে আমরা প্রায় 75,000 বোতল বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফরেন লিকার আমরা সিজ করি, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ওই ইলিগালি ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছিল, স্পুরিয়াস ড্রাগ বা স্পুরিয়াস অ্যালকোহল। তো সেগুলোকে আমরা সিজ করি। আমরা মোট 9 জন আসামিকে ওখান থেকে অ্যারেস্ট করি। 9 জনকে যাদের পাওয়া গেছিলো তাদের মধ্যে তাদেরকে আমরা আজকে ফরওয়ার্ড করেছি। এখানে কিছু চাইল্ডকেও লেবার হিসাবে কাজ করানো হচ্ছিল, সেটাও আমরা ওখানে তাদেরকেও সেখান থেকে উদ্ধার করেছি। আমরা আজকে তদন্তের স্বার্থে 5 জনকে পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার দিয়ে পাঠিয়েছি। ইনভেস্টিগেশন চলছে। এই যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা তাদের বাড়ি কোথায়? তারা বাইরের বাসিন্দা, মেনলি জামতারা এবং বিহারের ওই দিকের বাসিন্দা আছে। আমরা মানে যেটা জানতে পেরেছি, এই যে সিলগুলো ছিল, লেবেলিংগুলো যেগুলো ছিল, মানে বোতলে যে লেবেল ছিল তাতে লেখা ছিল সেল ফর পাঞ্জাব অ্যান্ড সেল ফর বিহার। তো এইরকম আমরা পেয়েছি। এগুলো সবই তার মানে আমরা একটা অ্যাজিউম করা যায় যে এইসব জায়গাতে এগুলোকে পাচার করা ছিল। আমরা একদম ইনিশিয়াল ফেজে আছি। আমরা এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলেছি, এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাদেরও আমরা যে ওপিনিয়ন সেটা নিয়েছি এবং আমরা এফএসএলেরও যে এফএসএলের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন সেটার জন্য আমরা এক্সিকিউটিভগুলো সেখানে পাঠাচ্ছি। এই ঘটনায় এফএসএলও আসবে এই জায়গাটাকে পরীক্ষা করে। এই ঘটনায় মানে মূল পান্ডাকে এটা আমি আবার বললাম, আমরা ইনভেস্টিগেশনের একদম ইনিশিয়াল ফেজে আছি। আমরা যে সিজারটা করেছি, অ্যারেস্টগুলো করেছি, আমরা যাদের অ্যারেস্ট করেছি তাদেরকে রিমান্ডে নিচ্ছি। আমরা পরবর্তীকালে এর পেছনে যদি যারা আছে তাদেরকেও আমরা আইডেন্টিফাই করবো এবং তাদেরকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। এই কারখানা কতদিন ধরে চলছিল এখানে সেটা তো আমাদেরকে ভেরিফাই করে বলতে হবে, তবে কিছুদিন ধরে চলছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।
মালিক কাউকে কি পাওয়া গেছে এখানে? আমি আপনাদের বললাম যে আমরা 9 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে 5 জনকে পুরো ব্যাপারটা কে মাস্টার মাইন্ড, কে চালাচ্ছিল, কে লেবার, কে মিডিয়েটার, প্রত্যেকের রোল আমরা ভেরিফাই করব এবং যারা যারা এতে ইনভলভ আছে তাদের প্রত্যেকে অ্যারেস্ট করব। কত টাকার এটা মোটামুটি হবে? দেখুন, এই যে টাকার ব্যাপারটা, এরা তো পুরোটাই এরা নিজেদের মতো দাম লিখে রেখেছে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী, কিন্তু মার্কেট প্রাইসে যে জিনিসটার মূল্য দেওয়া আছে সেটা তো এই জিনিসটা তো সেটা নয়। এটা অ্যালকোহল যে ভাবুন রয়্যালস থেকে যে অ্যালকোহলের দাম হয়, মানে ফরেন লিকারের যে দাম হয় সেই দাম ওখানে লেভেল করা আছে, বাট এভাবে তো বাজার মূল্য আমরা বলতে পারবো না। মূলত ওইখানেই তৈরি হতো। ওখানেই তৈরি করছে। ঠিক আছে। कोल इंडिया का नाम हिंदुस्तान के 50 बेहतरीन काम की जगहों में। कोल इंडिया लैंड को ये एजाज़ हासिल है कि वो हिंदुस्तान के 50 बेहतरीन काम की जगहों में शामिल है। कोल इंडिया लैंड को ये एजाज़ मारूफ तंजीम ग्रेट प्लेस को वर्क के ज़रिए 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 347 तंजीमों के काम करने के तरीक़ों के एक जामा सर्वे के बाद दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि कोल इंडिया को एक जामा और पायदार तंजीम की तामीर के अज़म के लिए पहले ही काम करने के लिए बेहतरीन जगह के तौर पर तस्लीम किया गया है। कोल इंडिया हुकूमत हिंद की वज़ारत कोयला के तहत महारत्ना कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला पैदा करने वाली कंपनी के तौर पर कोल इंडिया हिंदुस्तान की घरेलू कोयले की 80% से ज़्यादा मांग पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। आसनसोल डिवीज़न के तहत देवघर बंका सेक्शन में महदूद ऊंचाई वाले सबवे की कामयाबी से तकमील। आसनसोल डिवीज़न के तहत देवघर बांका सेक्शन में महदूद ऊंचाई वाले सबसे नंबर 2 की तामीर हाल ही में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई है। ये कामयाबी खित्ते में हमवार रेलवे ऑपरेशन को यकीनी बनाते हुए मुसाफिरों और आवाम की हिफाजत और सहूलत को बढ़ाने की जानिब एक और कदम की निशानदही करती है। इस प्रोजेक्ट में मौजूद लेवल क्रॉसिंग को एक जदीद महदूद ऊंचाई वाले सबवे से बदलने के लिए काम की बारीक अमल दरामद शामिल था। नई तामीर शुदा LHS नंबर 2 लेवल करेगी। सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए बला तातिल सफ़र को यकीनी बनाने की मज़ीद बरा ये हादसात के ख़तरे को नुमाया तौर पर कम करेगा। मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफ़ा करेगा। तामीराती काम हिफाजती प्रोटोकॉल की सख्ती पाबंदी और ट्रेन ऑपरेशन में कम से कम रुकावट के साथ किया गया। इस अहम बुनियाद ढांचे के मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुनरमंद इंजीनियरों और कारकुनों की एक टीम ने अथक मेहनत की। ऑपरेशन में कम से कम रुकावट के साथ किया गया इस अहम बुनियाद ढांचे के मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुनरमंद इंजीनियरों और कारकुनों की एक टीम की अथक मेहनत की। HS को हल्की और दरमियानी गाड़ियों की ट्रैफिक को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि मानसून के मौसम में पानी जमा होने से बचने के लिए मुयस्सर निकासी को यकीनी बनाया गया है। ये तरक्की आसनसोल डिवीज़न की रेलवे के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने और ऑपरेशनल और हिफाजती चैनलों से मुयस्सर अंदाज में निपटने के दौरान हिफाजती मायारात को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। नंबर 2 की कामयाबी तकमील आसनसोल डिवीज़न की इंजीनियरिंग LHS ऑपरेशंस और हिफाजती टीमों की बाहमी ताउन पर मबनी कोशिशों को नुमाया करती है। तवक्को है कि इससे मुसाफिरों, मुकामी रहायशों और सड़क इस्तेमाल करने वालों को बग़ैर किसी रुकावट के राब्ते की पेशकश और पूरे खित्ते में हिफाजत को बढ़ाना होगा।
महाकुंभ मेला के लिए ट्रेनों का ज़ाब्ता। रेलवे ने महाकुंभ मेले के लिए 10 डीजल ट्रेनों की नकल व हरकत को मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। मनसूखी 12,307 हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 फरवरी 2025। 12,308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 फरवरी 2025। 22,307 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 जनवरी 2025। 22,308 बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 जनवरी 2025। 22,308 बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 फरवरी 2025। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ की तहकीकात का हुक्म दिया। 25 लाख रुपये मुआवजा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज़ अदालती तफ्तीश का हुक्म दिया कि वो इन वजूहात को तलाश करे जिसकी वजह से महा में भगदड़ का सामना करना पड़ा। कुंभ जिसमें 30 अफराद हलाक और 60 जख्मी हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ी कस 25 लाख रुपये की मुआवजे का भी ऐलान किया। 3 रुकनी इंक्वायरी पैनल की सरबराही रिटायर्ड जज हर्ष कुमार करेंगे और इसमें साबिक डीजीपी वी.के. गुप्ता और रिटायर्ड IAS अफसर D.K. सिंह भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इस पूरे मामले की अलहदा पुलिस इंक्वायरी भी कराई जाएगी। बज़ाहिर जज्बाती आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे वाक़या की तह तक ज़रूरी है कि इस तरह का साँचा कैसे पेश आया। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी और DBP इस अलमनाक वाक़या की गहराई से जांच के लिए जुमेरात को महाकुंभ का दौरा करेंगे, लेकिन अपोजिशन लीडरों ने दावा किया कि डेथ ज़ख्मों की तादाद से ज़्यादा, क्योंकि 70 एम्बुलेंसों को लाशों और ज़ख्मियों को ले जाते देखा। बिहार के JDU के 2 कांग्रेस में शामिल। बिहार में पार्टी के जोश खरोश में तेज़ी आ गई है क्योंकि असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिससे रियासत के सियासी माहौल को चार्ज किया जा रहा है। रहनुमाओं ने अपनी पसंद की जमातों की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ने की उम्मीद में रुख बदलना शुरू कर दिया है। पार्टियां अपनी ज़ात की शनाख्त और जीतने की अवामल को एनकैश करते हुए उन्हें खुले हाथों से गले लगाई है। मंगल को हुक्मरां जनता दल के 2 सीनियर लीडरों अली अनवर साबिक राज्यसभा अंबर और बिहार के नॉर्थ मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा अखिल भारतीय पर हिमायती कमभकर सिंह के रियासती सदर मनोज परचाहती दीगर लीडरों के साथ ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल हो गए। अली अनवर पसमानदा कम्युनिटी के एक बाअसर रहनुमा है। पसमानदा मुस्लिम दोनों में पसमानदा का बड़ा हिस्सा है। वो दोबारा राज्यसभा के रुकन और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के सदर हैं। सियासी तजुर्बाकार ये मोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस अली अनवर और मांझी के ज़रिए पसमानदा मुसलमानों और अपनी हिमायत की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हफ्ता को रियासती आ रहे नायब सदर शोभा किशोरा बड़ी तादाद में हामियों के साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार की है। इसमें शामिल हुए पार्टी उम्मीद है कि इनके दाखिले से
ان کے داخلے سے لوک کوری ووٹ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ شوبھا کی شمولیت اس وقت ہوئی جب آر ڈی کشواہا ووٹ بینک میں قدم جمانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے لوک سبھا انتخابات میں اس نے کشواہا کے 3 امیدوار کھڑے کیے تھے۔ اس نے اورنگ آباد الیکشن جیتنے والے ابھی کشواہا کو لوک سبھا میں اپنا پارلیمانی پارٹی لیڈر مقرر کیا۔ شوبھا بہار اسٹیٹ کمیشن فار دی پرو الیکشن آف ایٹمس کی دھنوک ذات کے ایک سرکردہ رہنما بھاگلپور کے جے رائے نے بھی اس موقع پر اپنی شمولیت اختیار کی۔ جے ڈی دعویٰ کیا کہ اس نے سابق اسٹیبلشڈ سیٹ کشور کی جن سوچ پارٹی کی حمایت کی۔ اس نے سابق پولیس جسٹس پرشانت کشور کی جن سوچ پارٹی کی حمایت کی۔ حال ہی میں جے منگنی لال منڈل کو پارٹی لیڈر تیجسوی یادو نے آر جے ڈی میں شامل کیا تھا۔ منڈل کی مدد سے تیجسوی ای بی سی ووٹ بینک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہار میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ای بی سی رپورٹ کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ بوکارو سے کولکاتہ جانے والی گرفتار 4 طوطے اور 200 بس پر چھاپا۔ پون شرما کی رپورٹوں کے مطابق اسمگلنگ سے پہلے بنگال جھارکھنڈ انٹرسٹیٹ کے مسافر 200 پہاڑی طوطے برآمد ہوئے۔ درگاپور اور بردوان ضلع کے محکمہ جنگلات نے منگل کی رات درگاپور میں چھاپے مارے۔ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں مشرقی بردوان کے 2 براجد یگی کے شیخ اسلام اور شیخ وسیم اور جھارکھنڈ کے شیو شنکر چودھری اور اروند کمار پانڈے شامل ہیں۔ درگاپور کے کنکاسا بنکسو ٹول پلازہ کے قریب ایک بین ریاستی بس میں پرندوں کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد محکمہ جنگلات کی ٹیم نے جھارکھنڈ کے بوکارو سے کولکاتہ جانے والے مسافر کو روک کر تفتیش کی۔ قرض کی وصولی کے لیے ایس بی آئی نے فیکٹری پر قبضہ کیا۔ لالی گپتا کی اطلاع کے مطابق ایس بی آئی بینک نے کلٹی آسنسول کے نیم تالہ علاقے میں ایک بند دوبارہ فیکٹری کو سیل کر دیا۔ بدھ کو اس بینک کے کولکاتہ دفتر نے فیکٹری کو سیل کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ فیکٹری کو لیز پر لینے والے وجے جین نے بتایا کہ فی الحال فیکٹری بند ہے۔ فیکٹری میں مرمت کا کام جاری ہے۔ آج بینک ملازمین اچانک آ گئے اور فیکٹری سیل کر دی گئی۔ ان سے وقت مانگا گیا لیکن بینک حکام نے کوئی وقت نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2005 سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بینک حکام کو درخواست دی تھی لیکن بینک حکام نے ان کی ایک نہیں سنی۔ کلیانیشوری میٹل پرائیویٹ لمیٹڈ نے بینک سے قرض لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ آسنسول بی جے پی ایم ایل اے اور مغربی بنگال کے ریاستی سیکریٹری اگنی مترا پال نے بڑھتے ہوئے جرائم اور بگڑتے ہوئے قانون کو لے کر ترنمول حکومت پر سخت حملہ کیا اور ریاست کو حکم دیا۔ پولیس انتظامیہ پر بے عملی اور جنس نظام کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مجرموں کے حوصلے بلند ہیں جبکہ جنرل عوام عدم تحفظ کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ ترنمول حکومت کے آگے بنگلہ
नारे को निशाना बनाते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि रियासत जराइम, फायरिंग और तशद्दुद में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो बीजेपी इस मसला पर सड़कों से पार्लियामेंट तक एहतजाज करेगी। एमएलए ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस तृणमूल लीडरों की हिफाजत के लिए तैनात की गई है, जबकि आम लोगों की हिफाजत खुदा के रहम व करम पर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी को इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए और अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। ECL के CMD और प्रिंसिपल डायरेक्टर ने सेंट्रल अस्पताल कला का मुआयना किया। आसनसोल ACL के CMD सतीश झा ने ओहदा संभालने के बाद तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का तहैया किया है। अपने मुलाजमीन को सेहत की सहूलियात समेत सेहत की सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए CMD ने प्रिंसिपल डायरेक्टर गंजन कुमार सिन्हा के साथ सेंट्रल अस्पताल कला का दौरा किया। कला पहुंचने पर CMD और प्रिंसिपल डायरेक्टर CM और इंचार्ज एडमन डॉक्टर फैयाज अहमद MS एडमन डॉक्टर अनवर राय, अस्पताल के दीगर डॉक्टरों और ओहदेदारों ने परतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान NCMD और प्रिंसिपल डायरेक्टर ने इन दौरा स्टोर, पैथोलॉजी लैब और पेशेंट डिपार्टमेंट का दौरा किया। फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर और एडेंटिस्ट्री ऑफिस बिल्डिंग दोनों CMD और डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल ने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात को बढ़ाने के लिए हिदायत दी। अब है वक्त मोमेंट के SMS का। You must not lose faith in humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. आपको इंसानियत पर से आत्मात नहीं खोना चाहिए। एक समंदर अगर समंदर के चंद कतरे इनको हुक्म दे और गंदा ना हो जाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि